بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. مودی کی وزیر اعظم پولینڈ سے ملاقات. ڈونلڈ ٹسک نے کہا انڈیا عالمی مسائل حل کرنے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے. وزیر اعظم مودی ٹرین کے ذریعے کیو روانہ. جمعے کو زیلنسکی سے ملاقات کریں گے. بلنکن کی واپسی کے بعد بھی اسرائیلی بربریت جاری. کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا، درجنوں ہلاک اور زخمی. لبنان سرحد پر تناؤ. حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے ایک دوسرے پر حملے. مغربی کنارے میں 3 فلسطینی جاں بحق. مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ قطر کے وزیر اعظم ایران جائیں گے. چائنا نے شہریوں سے کہا لبنان سے واپس آ جائیں. شکاگو میں کملا ہیرس کی ہوٹل کے باہر فلسطین کے حامیوں کا احتجاج. شرم کرو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے. پاکستان میں مشہور کالم نگار اوریا مقبول جان گرفتار. فوج پر تنقید کی تھی. مسلکوں کے بیچ نفرت پھیلانے اور اداروں کو بدنام کرنے کا الزام. سپریم کورٹ نے مرکز اور بنگال حکومت سے کہا کولکتہ معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں. عدالت کے کہنے پر ایمز ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کر دی. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. غزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت کے تماشے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بربریت بھی جاری ہے اور اس ظلم پر دنیا کی خاموشی بھی ویسی ہی ہے. امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا مڈل ایسٹ دورہ ختم ہو گیا ہے. اس دورے کے دوران جنگ بندی سمجھوتے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے. دوسری طرف اسرائیل کے حملے جاری ہیں. بلنکن کے جانے کے بعد تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں تخلیہ کا نیا حکم جاری کیا. اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ سویلینز کو خطرناک وار زون سے ہٹانے کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا ہے. بلنکن نے حال ہی میں اسرائیل، ایجپٹ اور قطر کا دورہ کیا، لیکن جنگ بندی کے کوئی اشارے نہیں ملے ہیں. غزہ جنگ کے 321 دن پورے ہو گئے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ جمعرات کو اسرائیل کی بربریت جاری رہی اور الگ الگ مقامات پر کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا. دیر البلح میں ہوائی حملے کیے گئے. فجر کے وقت سینٹرل غزہ کے مغازی ریفیوجی کیمپ میں حملہ کیا گیا جس میں 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے. بیت لاہیہ میں حمود خاندان کے گھر پر حملہ کیا گیا. اس واقعے میں 11 ہلاکتوں کی خبر ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 38 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. میڈیکل ورکرز نے بتایا کہ جمعرات کی صبح فجر کے وقت سے شام تک سینٹرل غزہ کے دیر البلح اور ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں 22 فلسطینی جاں بحق ہوئے. ہزاروں فلسطینی دیر البلح سے بے گھر ہوئے ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج کا آپریشن ہو رہا ہے. ساؤتھ لبنان کی سرحدوں پر تناؤ اپنی انتہا کو پہنچتا نظر آ رہا ہے. اسرائیل نے سیدون شہر کے قریب ایک کار کو نشانہ بناتے ہوئے فتح کے ایک عہدیدار خلیل المقدہ کو ہلاک کیا. وہ فتح کی لبنانی شاخ الاقصی شہیدی بریگیڈ کے چیف منیر المقدہ کے بھائی تھے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے وقفے سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے تناؤ بہت بڑھ گیا ہے جس کی وجہ حزب اللہ کے کمانڈرز اور حماس چیف اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہے. حزب اللہ نے سرحد کے قریب اسرائیل کے ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا اور اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. ایک بیان میں حزب اللہ نے کہا کہ اس نے اس اڈے پر توپ خانے سے شلباری کی. اسرائیلی فوج نے یہ نہیں بتایا کہ اس حملے میں کتنا نقصان ہوا. اسرائیل کی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان کے 10 علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا.
मिडल ईस्ट में तनाव और जंग फैलने के अंदेशों के बीच कतर के वजीर आजम ईरान का दौरा करेंगे। ईरान की वजारत खारजा ने यह बात बताई। वजीर आजम वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल सानी अगले कुछ दिनों में ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास अरक्ची ने इस दौरे की तस्दीक की। पिछले हफ्ते कारगुजार वजीर खारजा अली बाकरी कनी ने कतर के वजीर खारजा से टेलीफोन पर बातचीत की थी। एक दिन पहले खबर आई थी कि कतर के अमीर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं की और इसके लिए ये वजह बताई गई कि वो बीमार हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है या इशारे मिल रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है। मिडल ईस्ट में एक और जंग के अंदेशों के बीच चाइना ने अपने शहरियों से कहा कि वह लेबनान से वापस आ जाएं। सीदून शहर में फतेह तहरीक के एक अहदेदार की हलाकत के बाद ये मशवरा दिया गया। बेरूत में चाइना के सफारत खाने ने कहा कि लेबनान सरहद पर तनाव बढ़ा हुआ है। चाइनीज शहरियों को चाहिए कि वो इस वक्त से फायदा उठाएं और कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए वापस आ जाएं। कई दूसरे मुल्कों ने भी अपने शहरियों को ऐसा ही मशवरा दिया है और कई एयरलाइंस ने बेरूत के लिए अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं। मगरबी किनारे के तलकरी में फलस्तीनी और इसराइलियों में झड़पें हो रही हैं। इन झड़पों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। तलकरी में इसराइल के एक धावे में 3 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बताया कि उसके फाइटर्स की इसराइली सिपाहियों के साथ झड़पें हुई। कुद्स नेटवर्क ने झड़पों का एक वीडियो भी जारी किया है। इस दौरान मगरबी किनारे के अलग अलग मकामात पर झड़पें जारी रही और कई फलस्तीनियों को धावों के दौरान गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि तलकरम रेफ्यूजी कैंप में इसराइल के हमले में 3 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। शिकागो के इस होटल के बाहर जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारत की उम्मीदवार कमला हैरिस ठहरी हुई थी, फलस्तीन के हामियों ने एहतजाज किया। इससे पहले भी ऐसा एहतजाज किया गया था जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन हो रहा था। सोशल मीडिया में इस एहतजाज के वीडियोस भी सामने आए हैं। एहतजाजी नारे लगा रहे थे, कातिल कमला शर्म करो, फलस्तीन को आज़ाद करो। कमला हैरिस फिलहाल नायब सदर हैं। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन में बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ तनाव कम करने और मगरबी मुल्कों के साथ, खासतौर पर यूरोपीय मुल्कों के साथ तनाव बहाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी दुश्मनी छोड़नी होगी। नए वजीर खारजा अब्बास अरक्ची ने, जो ईरान न्यूक्लियर डील के लिए होने वाली बातचीत में भी शामिल रहे थे, ईरानी पार्लियामेंट में अपने ओहदे की तस्दीक के बाद ये बात कही। ईरान की पार्लियामेंट ने, जिस पर सख्तगीर लोगों का कंट्रोल है, मसूद पेजेश्कियान कैबिनेट के तमाम अरकान को मंजूरी दे दी है। ये 2001 के बाद पहला मौका है जब कैबिनेट के तमाम अरकान को पार्लियामेंट ने एक साथ मंजूरी दी है। एक खातून वजीर फरजाना सादिक को भी मंजूरी दी गई। वो 10 साल से ज्यादा अरसे में ईरान की पहली खातून वजीर हैं। हाल ही में वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने वोटर से जो वादे किए थे उन वादों का ख्याल नहीं रखा जा रहा, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जवाद ज़रीफ ने मसूद पेजेश्कियान की कैंपेन में अहम रोल अदा किया था। जवाद ज़रीफ और पेजेश्कियान दोनों एतदाल पसंद हैं। पाकिस्तान में एक मशहूर कॉलम निगार, यूट्यूबर और टेलीविजन एनालिस्ट ओरिया मकबूल जान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर हेट स्पीच और सरकारी इदारों के खिलाफ रिमार्क्स का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसी FIA ने लाहौर में ओरिया मकबूल जान के घर पर धावा किया और उन्हें गिरफ्तार किया। FIA के एक तर्जुमान ने तस्दीक की कि ओरिया को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ओरिया मकबूल जान को 4 दिन के रिमांड में दे दिया। हालिया अरसे में ओरिया मकबूल जान ने फौज पर तनकीद की थी। एक हफ्ता पहले एक और यूट्यूबर और कॉमेडियन अवन अली खोस्ता का अगवा किया गया था, लेकिन वो कुछ दिन बाद वापस आ गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स और जर्नलिस्टों को खतरा महसूस हो रहा है। इस दौरान ओरिया मकबूल जान के वकील मियां अली अशफाक ने अदालत में बताया कि उनके मौकिल ने किसी की तौहीन नहीं की है और FIR ने झूठा केस बनाया है। हाल ही में ओरिया मकबूल जान ने मुबारक सानी केस के बारे में बाज़ रिमार्क्स किए थे। ओरिया मकबूल जान पर मसलकी नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क के साथ वार्सा में मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात, आलमी मसाइल, खासतौर पर यूक्रेन जंग के बारे में बातचीत की। अहदेदारों ने बताया कि ये मीटिंग आपसी दिलचस्पी के नए इम्कानात खोजने का एक अहम मौका थी। वज़ीर-ए-आज़म का वार्सा चांसलरी में शानदार इस्तकबाल किया गया। आपसी बातचीत के बाद मोदी ने पोलैंड के सदर एंड्रयू डोडा से भी मुलाकात की और उन्हें नामालूम सिपाही के मकबरे पर फूल चढ़ाए। बाद में मोदी ने बिजनेस लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। कल रात मोदी ने दारुल हुकूमत वार्सा में इंडियन कम्युनिटी से भी खिताब किया था। इस मौके पर मोदी ने कहा कि इंडिया हर एक के साथ जुड़ना चाहता है और सबकी भलाई का ख्वाहिशमंद है। मोदी ने कहा कि कई दहाकों से इंडिया दूसरे मुल्कों के साथ दूरी की पॉलिसी पर अमल करता रहा है, लेकिन आज के इंडिया की पॉलिसी यह है कि तमाम मुल्कों को करीब किया जाए। मोदी ने इस स्टैंड को दोहराया कि ये दौर जंगों का नहीं है और इंडिया मसाइल हल करने के लिए बातचीत और सफारतकारी में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब इंडिया को विश्व बंधु यानी दुनिया के दोस्त की हैसियत से देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलैंड सेंट्रल यूरोप में इंडिया का अहम पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी तिजारत बढ़कर $6 बिलियन की हो गई है। इस मौके पर पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडिया मौजूदा दौर में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है और उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को रोकने में इंडिया का अहम किरदार है। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोदी ने जंग खत्म करने में अपना रोल अदा करने के लिए आमादगी जाहिर की है। मोदी के साथ वार्सा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डोनाल्ड टस्क ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पोलैंड इंडिया की फौज की जदीदकारी में ताउन के लिए तैयार है। डोनाल्ड टस्क ने हालिया इलेक्शंस के लिए मोदी को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 2 मुल्कों के दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी पड़ाव में वो जुमे को यूक्रेन जाएंगे, जहां वो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। एक दिन पहले खबरों में कहा गया था कि मोदी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के साथ 2 टोक बातचीत करेंगे। 1992 में आपसी ताल्लुकात शुरू होने के बाद से ये किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूक्रेन में पहला दौरा है। मोदी ट्रेन के जरिए पोलैंड से कीव के लिए रवाना हुए। ये सफर 10 घंटों का है। इंडिया ने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के अमन और तरक्की के लिए खतरा है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के नुमाइंदे ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुकम्मल आलमी समझौते पर जोर दिया। इंडिया के नाज़िमुल उमूर आर रविंदर ने आलमी अमन के बारे में यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। दिल्ली के एम्स और दूसरे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक खातून डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के सिलसिले में यह हड़ताल हो रही थी। एम्स और राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का खुद नोट लिया है और डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की हिफाजत के बारे में सिफारिशें पेश करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। एम्स और दूसरे हॉस्पिटल्स में मुसलसल 11 दिनों से हड़ताल जारी थी। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मरकजी हुकूमत और बंगाल की हुकूमत से कहा कि वो कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को सियासी रंग ना दें। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल हुकूमत के वकील कपिल सिब्बल के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्लीज इस मामले को सियासी रंग ना दें, कानून अपना काम करेगा। हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कानून अपना काम करे और जल्द से जल्द तहकीकात पूरी हों। सुप्रीम कोर्ट ने खातून डॉक्टर की गैर फितरी मौत का केस दर्ज करने में देरी के लिए कोलकाता पुलिस पर तनकीद की। बेंच ने कहा कि यह हैरत की बात है कि मकतूला का पोस्टमार्टम गैर फितरी मौत का केस दर्ज होने से पहले किया गया। बीआरएस एमएलसी की कविता को तबीयत खराब होने पर दिल्ली के एम्स में शरीक किया गया। इससे पहले भी उन्हें तबीयत बिगड़ने पर एम्स में शरीक किया गया था। सोर्सेस ने बताया कि कविता वायरल फीवर और गायनिक प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। उन्हें तिहाड़ जेल के डॉक्टर्स की सिफारिश पर एम्स ले जाया गया। कविता पिछले कुछ महीनों से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में जेल में है। दिल्ली की अदालत ने फिलहाल उन्हें 2 सितंबर तक हिरासत में दिया है। 27 अगस्त को उनकी जमानत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मोदी की वज़ीर-ए-आज़म पोलैंड से मुलाकात। डोनाल्ड टस्क ने कहा इंडिया आलमी मसाइल हल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ट्रेन के जरिए कीव रवाना, जुमे को ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।
بلنکن کی واپسی کے بعد بھی اسرائیلی بربریت جاری، کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا، درجنوں ہلاک اور زخمی۔ لبنان سرحد پر تناؤ، حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے ایک دوسرے پر حملے، مغربی کنارے میں 3 فلسطینی جاں بحق۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ قطر کے وزیر اعظم ایران جائیں گے، چائنا نے شہریوں سے کہا لبنان سے واپس آ جائیں۔ شکاگو میں کملا ہیرس کی ہوٹل کے باہر فلسطین کے حامیوں کا احتجاج، شرم کرو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے۔ پاکستان میں مشہور کالم نگار اوریا مقبول جان گرفتار، فوج پر تنقید کی تھی، مسلکوں کے بیچ نفرت پھیلانے اور اداروں کو بدنام کرنے کا الزام۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور بنگال حکومت سے کہا کولکتہ معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں، عدالت کے کہنے پر ایمز ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کر دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔